आज की जो टीम है उसको ऑलरेडी मेरे अच्छे बुक्स के मार्क्स हो सकता है मिल जाए, सो यू मे बिगिन। क्या मैम है फिर तो यार? क्या? मैम जब आपका मूड होगा फिर हम वापस पीपीटी दिखा सकते हैं मैम, ज्यादा मिल जाएंगे, क्या अरे पता। तुम्हारी पीपीटी तो अच्छी थी, देखो तो ऐसा है कि ना आउटलुक अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज तुम कचरा भी दिखा दो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें मार्क्स दे दूंगी, इट डजंट हैपन लाइक दैट। बट यस, I'll be relatively more interested in watching what you do. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक आज रिट्रीटिंग मॉनसून है। यस मैम। चलो रिट्रीटिंग मॉनसून, अपने ग्रुप के मेंबर्स के यहाँ मुझे नाम लिख के दो एंड आई विल बिगिन योर इवेल्युएशन। अच्छा ये 5 ही हैं, अदिति, रतिका, रामा, प्रियांशी एंड मायरा, और कोई तो नहीं है? मैम एंड Pragya अदिति, was there in our group, ma'am, अच्छा, but she has not done anything. ओके, शी इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट। नाम मैं उसका लिख लेती हूँ। जिन लोगों को मैंने 0 दिया है ना, इन लोगों को मैं एक चांस दूंगी टू मेकअप फॉर समथिंग। हम कुछ रिवीजन वाले मैटर में तुम लोगों को डालेंगे। अगर तुम वहां अच्छा कर लेते हो तो फिर यहाँ के तुम्हारे पाप हम भूल जाएंगे कि यहाँ तुमने प्रेजेंट नहीं किया था। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने मार्क्स यहाँ पर दे दिए वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है। इफ आई सी इम्प्रूवमेंट इन यू इन जनरल, just try to understand my point। if I see there is an improvement in you, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं करते से थोड़ा सा कुछ करने लग गए। इफ आई सी एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन यू, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इंक्रीजिंग योर मार्क्स। कम मैं किसी के नहीं करूंगी नालायकी पे, लेकिन मैं बढ़ा सकती हूँ तुम्हारे मार्क्स। So there is always a chance of you doing better, but for that you will have to make up in subsequent things। अगर तुम यहाँ कहीं पीछे रह गए, यहाँ तुमसे कुछ गड़बड़ हो गई, it's okay, you'll get another, you'll get a lot of assignments। अगर उसमें तुम्हारा प्रेजेंटेशन एक्सेप्शनल रहा, देन आई विल कंसिडर कि यहाँ पर जहाँ इनको नंबर कम दिए हैं यहाँ पर इनके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। इट इज नॉट सेट इन स्टोन, नथिंग इज सेट इन स्टोन। बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं एक शीट भरूंगी जिसके अंदर सब चीजों के मार्क्स जाएंगे, एंड एवरीथिंग यू हैव डन इन द होल ईयर विल बी कंसिडर्ड। कम किसी के नहीं किए जाएंगे लेकिन बढ़ सकते हैं। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड जब भी तुम्हें कोई असाइनमेंट मिल रहा है। अगर कम मिले हैं तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू परफॉर्म इवन बेटर इन द नेक्स्ट वन to make up for the things that you have lost in this one। All right, so I am ready here, I am muting myself, over to you group। Retreating monsoon. These diagrams show the direction of winds during retreating monsoon. Introduction. During the months of October-November, the southwest monsoon winds become weaker and start to retreat from the skies of North India. Simply, the phase of withdrawal of monsoon winds from North India during October and November is called retreating monsoon. Also called transition season or post-monsoon. Hot rainy season to dry winter condition. Process.
During October-November, with apparent movement of sun towards south, low pressure through is weaker and is replaced by high pressure system. The wind become weaker and start withdrawing by beginning of October and monsoon withdraws from the northern plains. Months of October and November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. Let's understand. When the sun moves towards the south, the low pressure trough over India is weaker, and this is replaced by a high pressure system. And thus, the monsoon winds from India withdraws, and this is also called retreating monsoon or transition phase. Season of retreating monsoon. It commences with the beginning of late September or October and lasts till November. Climate during monsoon. Skies become clearer and clouds disappear. The first half is marked by rise in temperature. Days are hot and humid while nights are cool and pleasant. Scorching heat with humidity creates oppressive heat. Weather during the day becomes rather oppressive due to high temperature and humidity. This is called October heat. While in the second half, the temperature falls rapidly in North India. This is how the mercury rises during monsoon. Cyclones and destructions. Low pressure system over northwestern India transfers to the Bay of Bengal, which is associated with the occurrence of cyclonic depressions originated above Andaman Sea. They cause heavy widespread rain in the eastern coast and are very destructive. This means that there is a lot of rain in the eastern coast and cause a lot of destruction. Deltas of Godavari, Krishna and Kaveri are frequently stuck, causing great damage to the life and property. Sometimes coast of Odisha and West Bengal are also stuck. And this is how the cyclone looks. Festivals during retreating monsoon. Diwali. Quiz time. Which of the statements are correct? Statement 1. Deltas of Mahanadi and Godavari are frequently struck by cyclone. Statement 2. High pressure system is replaced by low pressure during this phase. This is question for all. The answer is both statements are incorrect. Thank you. Well, I might be a little biased because of my good mood, but I actually liked this presentation quite a lot.
You could have included more questions for quiz, but it gave us a good idea. We can also do this kind of project work जिसके अंदर हम चैप्टर के कंटेंट का क्विज बना सकते हैं. ये भी तुम लोगों को काम पकड़ाया जा सकता है. It's a good idea. I liked the presentation. It was smooth, crisp, short, and to the point. And yes, I loved the use of emojis. Made me laugh. Good. I liked this. I'm giving good and favorable marks to this group. Is the next group ready? Winter group. If you're ready, we can be finished up with your presentation as well. Yes, who's the leader? Janvi. Janvi. Yes, Janvi meeting में है. Yes, ma'am. हाँ तो जानवी अच्छा जानवी बोल रही है सॉरी माय बैड यस जानवी इज योर ग्रुप रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन और डू यू Yes, नीड ma'am. टाइम रेडी Yes, ma'am. It's एवरीवन ready. okay fine then send me the names Yes, ma'am. Ma'am, return. okay thank you you may begin your presentation Yes, ma'am. Om Shri Sai Ram. From the chapter Climate, winter is provided to us. The group members which are substituted by ma'am are Janvi, Akshata, Akshara, Aditi, Gunika, Yashika. Subtopics: temperature, parts of countries, crop of season, high pressure and low pressure, characteristics, features. First, temperature. Ma'am, Aditi is not present. aditi verma is not present ठीक है fine I think this must be her work temperature wala Yes, I'll ma'am. read. I'll read out. I'll try to substitute Aditi. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 degree to 25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 13 to 15 degrees Celsius. See, the whole idea behind this is that because the sea moderates temperature, मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने देती है ना वो बहुत ज्यादा गिरने देती है so the sea is moderating the temperature hence the temperature at the coastal area is relatively higher than that of the temperature in the northern area and the influences of the winds that blow from Ganga valley from the west to the northwest the weather is normally marked by clear sky low temperature low humidity and feeble variable winds see as the monsoon has already retreated from these areas the influence of these winds combined with that leads into the dry and cold conditions yes the peninsular region does not have a well defined cold season there is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to moderating influence of the sea I already said that the influence of the sea the elements of weather and climate are the same that is temperature atmospheric pressure wind humidity and precipitation temperature के जितने all whatever the elements of weather and climate are in all the other seasons they are also present here in summer the mercury rises to 50 degree and in the winter night the temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus in 45 degree see the area which is very far away from from all these factors this moderating influence that will have different kind of weather condition so yes are you ready to continue Next. Yes, yes ma'am. Next, part of countries. In West Bengal, these storms are known as Kal Baisakhi. The close of the summer season per monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka.
The thickly populated deltas of Godavari, the Krishna, and the Kaveri are frequently struck by cyclones. Sometimes these cyclones arrive at the coastal of Odisha, West Bengal, and Bangladesh. Next, crop of season. The Indian cropping season is classified into two main seasons, Kharif crop, Rabi crop, based on monsoon. Rabi cropping season is from October to March, winter. Means in winter, farmers plant Rabi crop like wheat. A good rain in winter spoils the Rabi crop but is good for Kharif crop. The major Rabi crop in India is wheat, followed by barley, mustard, sesame and peas. Peas are harvested early as they are ready early. Indian market are flooded with green peas from January to March, picking in February. Next, high pressure and low pressure. India has unique wind and pressure condition. During winter, the northern areas near Himalaya has high pressure. Therefore, winds from this region blow to south where the pressure is lower. Low pressure system originated over Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the western flow. They cause much need winter rains over the plains and snowfall in the mountains. During the winter, winds pattern usually comes from northwest direction. Last, characteristics features. We can see falling snow and freezing cold temperatures during this season. During this season, strong winds also blow all around. Winter season generally lasts for 3 months. This season has short days and longer nights. People wear thick clothes during winter. Think about these questions. What are common in north and the highest slopes of Himalayas in winter? Any guesses? Yes, anybody who wishes to answer can unmute their mic and answer. And yes, if you're answering, it means you're paying attention. That gives you bonus marks, gives you an opportunity to redeem yourself. Yes, Quizmaster, is he correct? Ma'am, I'm not able to see what Acha, he's beta, written. Pujit, can you please unmute your mic and answer? Yes. Snowfall. Fine. Okay. Next question is why Tamil Nadu coast receive rainfall in winter? Due to southwest trade winds. Yeah, because of retreating monsoon in simple. Next question. What is average temperature of North India? Anyone? 37 degrees. 24 degrees to 25 degrees. Okay. Next question. What is Kal Baisakhi? It's a Bengali name of the winter. Okay, it's usually for the season. Why are the deltas of Kaveri, the Godavari, Krishna frequency struck by cyclones? Anyone? Okay. Basically, it is because of the Bay of Bengal because the pressure is not there fixed because of the change in pressure. Last question. Why wheat is also known as winter wheat? Because it is grown in Because it is grown sown in in winter. Because it is Rabi crop. Thank you and Sairam. Okay, fine. I saw two people redeeming themselves and I have increased one of your marks already.
Thank you, ma'am. Thank you. And it was a good presentation. I liked the presentation. It was precise, it was crisp. The only suggestion I have for this is you could have done a little bit better with the spellings. There were a lot of spellings error. So my suggestion is that the next time you're making some presentation, type it down in the Microsoft Word first. उसके अंदर spell check होता है, तो एटलीस्ट के spell check से जो ऐसी mistakes हो रही हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि cost is COAST and cost is COST, तो यहाँ क्या confusion हो जाता है. So that is one suggestion I have. It was good, it flowed seamlessly, I liked it, and it felt like everybody was in sync. Nice. Thank you, ma'am. अच्छा, अब मुझे ना एक फीलिंग ये आ रही है that the girls have clearly outdone boys in this presentation matter. Because even if there was somebody who was a weak link in your whole presentation, I could not find that weak link. So kudos to both the leaders and all the members that I was unable to find any weak link in both these presentations. कि मुझे इसको कम नंबर देने चाहिए, इसको ज़्यादा नंबर देने चाहिए. It all flowed seamlessly. So all of you worked together well, and that is exactly what I wanted. कि पता ही ना चले कि कहाँ किसी से अगर गड़बड़ भी हुई तो कहाँ पर हुई. Marks I have given all of you 10. Both the presentations. I liked it enough. Like I said, I could not find the weak link. If I could not find the weak link, मैं किसके marks काटूंगी? That is what we are expecting from you when it is time of group project. कि अगर कोई तुम्हारी टीम में weak भी है, so you take care of that person. In that way, both of you get rewarded. अब मुझे पता है, I know by my experience that there are some weak links in both the groups, but they were covered up well. They were helped well by all the others, so that makes me happy, and this is exactly what I want. And there is something that I want to tell you about class 10th. I was inspired by your presentations that they're doing so well. I tried doing that in class 10th also, and I asked them to nominate themselves as leader. There was only one person who nominated himself to be a leader, and he also chose his group. There were like 3 people who were very happy to be in his group, and I asked twice. मैंने कहा कोई तो बताओ, and they did not choose their leader. So ultimately what I did, because I should tell you, I am not a nice person, and you should know that I am not a nice person. I made groups, and I made the least person they wanted to be the leader of that group, and I put up all the permutation and combinations of the people I know who are not generally in sync with each other, so they will have trouble coordinating and working together. And then I made 6 groups, and that was a lot. There were lesser number of people, and then initially I thought that I'll just give them one presentation, but because I felt there was lack of initiative, I gave them 2 presentations to do all at once, and they were given the time of exactly 7 days to prepare that. So consider that a veiled threat, that if you keep on doing well like you are doing till now, this class generally makes me happy, and that is not something I say lightly. So keep doing the good work up, and we will all be happy together, because if I am unhappy, I will definitely make you unhappy with me. I don't like suffering on my own. So good work, you have done very well, and the girls have seriously made me expect more. We'll do some other things, whatever you will feel like, but because I am too happy today, तो मैं आज तुम लोगों से पूछ लेती हूँ. एक मैंने सोचा था कि तुम लोगों को मैप फाइल करवाएंगे. I am still not sure about it, because हम लोगों ने मैप वर्क क्लास में तो कोई इतना अच्छे से करा नहीं है कि मैं उसे एक मेजर प्रोजेक्ट की तरह आप लोगों को दूं. So is there something that you would like to do? I'm inviting ideas from you. I need to do your multiple assessment. I have done this one thing जो हम लोगों के प्रेजेंटेशन थे, और एक मैंने आपके लिए स्टोरी टेलिंग रख रखा है. I still have a lot of assessments for you to be done. So what kind of assessment you would like? जो तुम्हें अच्छा लगे, I will consider. If it is justifiable, I will consider. Everybody can pitch in their ideas. We'll decide together.
because it is all up to me. I don't know if we will be having any other kind of test this year or not, because the last meeting we had, it was discussed that instead of having these compartmentalized tests, we will have continuous evaluation. Continuous evaluation के लिए I'll have to set parameters. अब वो पैरामीटर्स मैं अपने मन से सेट करूं, फिर उसके बाद तुम्हें उसमें एडजस्ट करूं, इट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. बट इफ यू विल इनपुट थिंग्स, then we can decide the parameters together कि हम लोग कैसे अपनी मार्किंग इस साल करें. If it is justifiable, I will accept all the inputs you have. So keep the ideas coming. बताओ मुझे क्या चाहते हो, किस बेसिस पर तुम्हें मार्क्स दिए जाएं. प्रेजेंटेशन तुम लोगों ने कर लिया. इफ यू वांट टू डू एनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड आई एम कंसिडरिंग दैट, और ये सारे उस कंसिडरेशन में करना है कि एवरीथिंग हैज टू हैपन ऑनलाइन. एनीवन, एनीथिंग? आई होप आई एम नॉट म्यूट किया. Activeness in the sense, elaborate करो. I will accept whatever you are saying. I will write it down if you ask me to. तुम्हारे सामने मैं एक वर्ड फाइल बना के लिख लेती हूँ. थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो कि उसको फिर हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. मैम कौन कितने अच्छी तरह फ्लुएंट बोल सकता है? देखो वो तो क्या है कि फ्लुएंसी बेसिकली लैंग्वेज के उसमें चली जाती है कि ना कौन कितना फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकता है या कौन कितना फ्लुएंटली हिंदी में बोल सकता है. तो वो मैं कैसे इवेल्युएट करूं, वो मेरा क्राइटेरिया ही नहीं है. क्विज करें. हाँ मैम चैप्टर पढ़ाने के बाद उससे वो थोड़े थोड़े कोई भी पॉइंट्स पूछ सकते हैं उनसे दूसरों से. अच्छा, अगर मान लो मैं इसे क्राइटेरिया बना दूंगी ना, तो तुम लोगों को जो नहीं भी पूछना होगा तुम वो भी पूछोगे, क्योंकि तुम्हें एक कोटा पूरा करना होगा कि यार कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछो वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आई आस्क क्वेश्चन इन क्लास, और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ भाग के चले गए थे. उस दिन केवल 16 रह गए थे. और क्वेश्चन इन क्लास के लिए क्या मैं उसको क्राइटेरिया, रैंडम क्वेश्चनिंग को मैं, देखो इन जनरल ये सब क्राइटेरिया है. आई कीप दैट इन माइंड कि कौन कितने क्वेश्चन पूछता है और कौन मेरे क्वेश्चन पूछने पे जवाब देता है नहीं देता है. ये काफी ना जनरल पैरामीटर्स. देखो पैरामीटर कैसे डिसाइड किए जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर स्पीच कंपटीशन हो रहा है तो उसमें पैरामीटर क्या होगा कि कंटेंट क्या है ना, उसको प्रेजेंट कैसे किया, फ्लुएंसी कितनी थी, उसका ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ा. पैरामीटर ऐसे होते हैं जो थोड़े से हम फिक्स कर सके. एक्टिवनेस को मैं फिक्स कैसे करूं, एक्टिवनेस को फिक्स नहीं कर सकती. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हाँ कौन कितना एक्टिव है, सो दैट कैन बी केप्ट इन माइंड. एक्टिवनेस कैन बी केप्ट इन माइंड, क्वेश्चंस कितने पूछते दैट कैन बी केप्ट इन माइंड. पर ये ऑब्जर्वेशन है, इसे मैं पैरामीटर नहीं बना सकती. क्विज कैन बी अ गुड पैरामीटर. लेकिन अब देखो ऐसा है कि क्विज को फिर कैसे करें, थोड़ा आइडिया दो. Okay, you can make presentation for revision of chapters like question from between the chapters. ठीक है. Yes नकुल बोलो. मैम जैसे मैम हमारा मैम एक टॉपिक होगा तो मैम उसमें से मैम कोई भी मतलब भी देख के मैम कुछ क्वेश्चन बनवा के मैम सबका रिवीजन हो जाएगा और उसका भी रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, द आइडिया सीम्स गुड. तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? मैम क्विज के फॉर्म में. क्विज के फॉर्म में करें. देखो क्विज के फॉर्म में दिक्कत ये है कि क्विज को अगर हम करते हैं तो वो बहुत छोटे पोर्शन को कवर कर पाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर हम टेक्निकली देखें तो अगर हम क्विजिंग करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे हर फैक्ट के ऊपर, यहां से घुमा के, वहां से घुमा के, यहां से घुमा के. लेकिन जब उसको कंपाइल करना है, देखो ये दो चीजें होंगी इसमें. क्विज से एक चीज होगी कि हमारी फैक्चुअल नॉलेज और कंटेंट, जो कंटेंट की नॉलेज है वो सही हो जाएगी. लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम और है
क्विज तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बिल्कुल कर लेंगे, कि तुम लोगों की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको कैसे बेटर किया जाए। जो तुम लोगों को आदत नहीं है पॉइंट्स में लिखने की, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करने की, उसका मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सिखा दो। सिखा भाई, मैं तो सिखा परेशान हो रही हूँ, तुम मेरे से पूछो तो सही। अब मैं तुम्हारा हाथ, जैसे केजी में हाथ पकड़ के लिखवाते थे पेंसिल से, वो तो मैं कर नहीं सकती। तुम मुझे क्वेश्चन के आंसर भेजोगे, तुम मुझसे पूछोगे कि ये सही है या नहीं, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ ये सही है या नहीं, या फिर तुम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब मैं तुम्हें मॉडल आंसर्स तो बता चुकी हूँ, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन की टेक्निक में देखना है तो भाई तुम मुझसे पूछ सकते हो। देखो सीधा सा सवाल ये है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थे, तो उसके 5 कॉज थे, 5 कॉज में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट था। जैसे ड्रेनेज ऑफ कि ना, द ट्रेजरी ब्लेड आउट, तो ट्रेजरी ब्लेड आउट इसका मतलब of talking in my words, but you can say that the treasury was empty, you can say that also। तो भाई वो काम की चीज थी, ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी थी? बिकॉज द फ्रेंच वर पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। देखो क्या होता है, सीधी सी बात है कि ना, पॉइंट होता है, पॉइंट का एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन को तुम ऐसा मान के चलो कि 1 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। कैसे लिखते हो? डेफिनेशन लिखते हो, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देते हो कि यार थोड़ा सा तो लिख दे, नहीं तो खाली रह जाएगा। यू can give a page of any chapter and ask to explain. I cannot give page of any chapter, but I can definitely give topics. जैसे मैंने आप लोगों को अभी टॉपिक दिए थे and the presentation came out quite well, quite nicely. ठीक है, ये काम कर सकते हैं। ओके, अंडर कंसिडरेशन। 2 चीजें मुझे इसमें काम की समझ में आ रही हैं कि एक तो जो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा मुझे लग रहा है क्विज ऑफ फैक्चुअल टॉपिक्स, और तीसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉपिक वाइज रिविजन क्वेश्चंस। ठीक है, 3 चीजें मुझे समझ में आ गई हैं। और कुछ तुम लोग बताना चाहते हो? अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैंने तुम्हें दे रखा है और मैं वापस पूछना भूल गई हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, आई गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड आई फॉरगेट रिकैपिंग देम। तो अगर कुछ ऐसा है तो मुझे याद दिला दो। स्टोरी टेलिंग नहीं, मुझे याद है स्टोरी। मैम आपने चार्ट भी बनवाया था। बेटा जो प्रोजेक्ट, वो जो चार्ट वर्क है ना, वो 5 मार्क्स का अलग से है, वो प्रोजेक्ट के अंदर उसमें होगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट में उसका एवेल्युएशन होगा 5 मार्क्स का, वो एक अलग चीज है, और वो मैं रिव्यू करूंगी। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम पीपल, मैंने अभी वो चेक नहीं करी है, वो मैं चेक उस दिन करूंगी जिस दिन मुझे मार्क्स देने होंगे। मुझे पता है किस किस का है, मैंने अपनी ड्राइव में सब सेव कर रखा है, बिल्कुल तुम्हारे लेबल के साथ, तुम्हारे नाम के साथ, तुम्हारी कॉपीज भी हैं, तुम लोगों के चार्ट्स भी हैं। अच्छा, अब ये जो तुम लोगों ने मुझे 3 आइडिया दिए हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब ये जो टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चन है, पहले इसको विजिट करते हैं। ये ग्रुप में करना चाहोगे कि कंबाइन करना, कि पर्सन टू पर्सन? ग्रुप में। सिंगल मैम ग्रुप। मैम सिंगल ग्रुप ग्रुप मैम मैम। सिंगल। अरे देखो ऐसा है ना, मुझे ऑडिटरी रिस्पॉन्स में समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लिखना पड़ेगा तो मैं काउंट कर पाऊंगी। देखो ग्रुप में क्या होता है कि ना, हमारी कमियां बच जाती हैं। कोई बात नहीं अदिति, आई सॉ योर पोर्शन, यू विल बी गिवन अ चांस टू मेक अप फॉर दिस लेटर ऑन। ओके, मैम ग्रुप में मैम एक दिक्कत रहती है मैम। क्या दिक्कत आती है बताओ?
मैम जो लीडर रहता है ना वो फंस जाता है, और मैम उसको मैम अब करके मैं उससे काम तो कराना ही है मैम। मैम जिसने हाँ। काम नहीं करा मैम उसका भी मैम उसको नाम करवाना ही पड़ेगा मैम। और मैम वो पूरा मैम माता बच्ची करेगा मैम, वो सामने वाला बैठ के काम करेगा मैम, इसलिए मैम सिंगल मैम उसकी भी पढ़ाई होगी, हमारी भी पढ़ाई होगी मैम। मैम वो तो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा है। वो तो ओहो, पता है तुम्हारे I श्याम can, श्याम I can नाटक see, कर रहे थे, हमें पता है। I can see barbs going here and there. देखो क्या होता है कि आई एम ऑल्सो अ सिंगलटन पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर मैंने लोगों को चिल्लाया नहीं, या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई हूँ, या फिर मैं अनहैप्पी नहीं हुई हूँ कि कोई काम नहीं करता है। बट दिस इज प्रेपरेशन फॉर लाइफ। अभी तुम देखो, मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है। आई वर्क विद पीपल हु हैव सो मच मोर एक्सपीरियंस देन मी। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर मैं थोड़ी नाइव हूँ। आई हैव डिफरेंट आइडियाज, आई हैव डिफरेंट नोशंस। लेकिन क्या होता है कि व्हेन यू वर्क विद अदर पीपल यू लर्न टू कोऑर्डिनेट। और लाइफ में ना केवल हम अकेले नहीं रह सकते, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें ऐसे एनवायरनमेंट में भी काम करना है जहां हमें पता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा and I'll have to carry the load, लेकिन फिर भी you happily do that because that is how life works, that's how real life works. सिंगल पर्सन में क्या होता है कि आप अपना काम करते हो, आप अच्छे से करते हो। जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो अपनी क्वालिटी दिखा सकते हैं, that is completely okay, you're saying the right thing. बट केवल तुम्हारी एक्सेलेंस एक ही डायरेक्शन में डेवलप होती है if you work singly. If you work as a single person, your excellence develops in only your own direction. तो क्योंकि एक हमने ग्रुप प्रोजेक्ट कर लिया है तो हम ये दोनों तरीके से करेंगे। एक काम हम ऐसा करते हैं कि जो रिवीजन क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो हम लोग देते हैं ग्रुप में, ठीक है। रिवीजन क्वेश्चंस ग्रुप में देते हैं और क्विज जो होगा वो हम लोग इंडिविजुअल करेंगे, ठीक है। गुड इनफ? Yes ma'am, I agree. You agree? Okay, fine. And जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन है ये भी हम लोग सिंगल करेंगे, ठीक है। एग्रीड? Yes, ma'am. अरे बड़ी बड़ी धीमी आवाज आई बेटा तेरी, क्यों इतनी परेशान है? Yes ma'am. अच्छा, पर अब देखो यहाँ पर एक चैलेंज ये आता है, देयर आर सम ऑफ अस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। रेडिली एक्सेस नहीं है। शेयर करके उन्हें सिखा देंगे। बेटा सिखाने की बात नहीं है। अब देखो ऐसा है कि मैं भी समझती हूँ, अभी मेरे पास इस समय एक लैपटॉप है जिसमें कैमरा चल रहा है। अभी मैं क्लास ले रही हूँ, 2 दिन बाद मेरे भाई की क्लास शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। मेरे पास एक और लैपटॉप रखा है लेकिन उसमें कैमरा नहीं चल रहा है, वो बूट नहीं हो रहा है। मेरे कंप्यूटर में जो है कैमरा नहीं लगा हुआ है। सो चैलेंजेस आर देयर इन एवरी हाउस होल्ड। सामान होते हुए भी वो कभी कभार नहीं मिलता है। तो आपका मोबाइल आपका कंप्यूटर कैमरा बन जाएगा। मैम क्या डिसाइड हुआ है? बेटा डिसाइड ये करा है हमने कि हम लोग जो टॉप, देखो मैं तुम्हें 3 चीजें जो मैंने लिखी है ना, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने सोची हैं। इसमें से जो पहले के 2 हैं वो मैंने सोचा है कि इंडिविजुअल करे जाएंगे और टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चन वो ग्रुप में करे जाएंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस इज कि गूगल फॉर्म मोबाइल पे भी बन सकते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया है या नहीं गूगल फॉर्म बनाना? नो मैम। नहीं बताया? नहीं देखो तुम्हें आता है वो बात अलग है, लेकिन मैंने बताया है या नहीं? ठीक है। तो हम लोग ना अभी आने वाली किसी एक क्लास में मैं तुम लोगों को गूगल फॉर्म की ट्रेनिंग दे दूंगी कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है। और पहले तो ट्रेनिंग लो कि कैसे बनता है, फिर हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं कि किस किस टॉपिक के ऊपर कौन कौन गूगल फॉर्म बनाएगा। अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखने चाहिए एक टॉपिक पे? आई थिंक 5 इज इनफ। यूट्यूब देखो ऐसा है ना, सब कुछ सब चीज पर अवेलेबल है, हर किसी के पास टाइम नहीं है। बेटा मुझे लग रहा है 20, बेटा इतने बड़े टॉपिक नहीं होते हैं कि 20 क्वेश्चन बन जाए। चलो लेट्स सेटल ऑन बिटवीन 5 to 10, बिटवीन 5 to 10, 5 से ज्यादा 10 से कम।
वो तुमको जिस हिसाब से टॉपिक मिलेगा तुम उस हिसाब से उसे डिसाइड कर लेना। सब लोग टेस्ट देंगे, लेकिन जो टेस्ट बना रहा है ना, एवेल्युएशन उसका होगा ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस। और तुम कितना ही इंटरनेट पे टीप टाप लो, लेकिन ना मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ट्रस्ट मी आई हैव ट्राइड। नहीं, 5 से ज्यादा चाहिए मुझे। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड ऑल दीस क्वेश्चंस। और फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे ना, इसी का मैं क्वेश्चन बैंक बना दूंगी, और फिर जब तुम्हारा फाइनल में एमसीक्यू होगा उसी में से क्वेश्चन उठा के दे देंगे। कितनी अच्छी बात है। मैम सारे बच्चों को याद कर करके पहली हालत खराब हो जाएगी। भाई प्रैक्टिस ही तो थी। अगर मान लो तुम लोगों का कंटेंट अच्छा है तो व्हाई शुडंट आए? भाई तुम मेरे से अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? तुम अपनी इंजेन्युइटी से भी अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो सकता है तुम कहीं और से टीप के अच्छे क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे ना, उसके लिए तुम्हें कम से कम 15-20 तो देखने पड़ेंगे, और वो स्ट्रिक्टली तुम्हारे बुक में से होने चाहिए। बुक से ज्यादा बाहर नहीं जाना है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक आध उंगली बाहर चली जाए चलेगा, पूरा पैर बाहर मत निकाल लेना बुक के, कि पता चला हम यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं हिटलर और तुमने जो ये पूछने लग गए कि हिटलर का फैमिली बैकग्राउंड क्या था। अरे इफ यू विल मेक योर ओन क्वेश्चन आई विल बी हैप्पीएस्ट। आई थिंक दैट टाइम इज अप। हम इसी डिस्कशन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेते हैं। पहले ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला इसमें कुछ बचा है क्या? यस यस यस, मैं इसको और एक्सप्लेन करने वाली थी यूजिंग द टाटा क्लास एज, वो भी करेंगे। और चैप्टर कौन कौन से बचे हैं एक बार मुझे याद दिलाए। तो रशियन रेवोल्यूशन बचा है, और एक इकोनॉमिक्स का भी बचा है ना। मेरे ख्याल से तीनों के एक एक बचे हैं। पॉवर्टी, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले हम ये ना सारे डिसीजंस ले लेंगे कि हमें कैसे अपना इवैल्यूएशन करना है, फिर उसके बाद हम लोग ये फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस एक रशियन रेवोल्यूशन में टाइम लगेगा, बट विल मेक टाइम फॉर दैट। थोड़ा सा क्लाइमेट को और हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, इसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। सो द प्रेजेंटेशंस आर ओवर। स्टोरी टेलिंग तैयार रखो, किसी भी दिन ना एज अ फिलर तुम्हें यूज कर लिया जाएगा। फिलर समझते हो? यस मैम। जब कुछ और नहीं होता है करने के लिए तो फिर तुमसे काम चलाया जाएगा। सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू साईराम। सारा मैम। सायरा मैम।